Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we are going to discuss about the missing orders of in the diffraction pattern in diffraction grating. So अब तक हमने diffraction grating के बारे में पढ़ा था. अब हम देखेंगे कि diffraction grating में हमारे पास में बहुत सारे slits रहते हैं. तो कई बार क्या होता है कि कुछ slits के मिनिमा सिंगल स्लिट का मिनिमा और जो एन स्लिट्स है उसका मैक्सिमा कई बार कोइंसाइड होता है और उसकी वजह से कुछ ऑर्डर जो है हमारे मिस हो जाते हैं. तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से वो ऑर्डर्स हैं विच आर द ऑर्डर्स दैट आर बीन मिस्ड इन द फ्लोर ऑफ डायफ्रैक्शन और सॉरी इन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ओके, सो as we all know, so this is the following diagram. Let me use a convex lens to focus on the XY screen. So if you remember, in the previous class we have defined resultant amplitude to be A naught sine alpha by alpha into sine of n beta by sine square beta. So this was sine beta, not sine square beta, it is sine beta. Okay, and from this you can easily calculate the intensity. That will come out to be A naught square sine square alpha divided by alpha square into sine square n beta divided by sine square beta. Okay, so if you remember in the last class we have studied that this resultant is due to the single slit and this resultant is due to the n number of slits. So basically इस पॉइंट P पे आई एम गेटिंग द सपोज करो कि एक सिंगल स्लिट से मुझे इस पॉइंट P पे एक मिनिमा मिल रहा है और n स्लिट्स की वजह से यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है या मैक्सिमा मिल रहा है. ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अगर सपोज करो ड्यू टू सिंगल स्लिट्स इफ आई एम गेटिंग द मिनिमा, तो ये वैल्यू जो है वो मेरी जीरो हो जाएगी और नेट इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी. इसका मतलब जो है मेरा मैक्सिमा है वो क्या हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली आई एम मिसिंग द मैक्सिमा. ओके, अब इसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करेगा. अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जो स्लिट विड्थ है उसको हमने ई माना था. ओके, वॉट एवर द स्लिट विड्थ इज दैट इज ई, और जो ये रूल लाइन्स है या फिर आप कह सकते हो स्लिट सेपरेशन है उसको हमने डी माना था. तो जैसी अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो ये जो मेरा नंबर ऑफ मैक्सिमा जो मिसिंग है वो किसकी वजह से होगा, स्लिट विड्थ और स्लिट सेपरेशन की वजह से होगा. सो यू कैन राइट फॉर अ पर्टिकुलर set of slit width and slit separation, certain number of maxima are found to be missing. Maxima are found to be missing. Okay, so basically it will depend on the values of E and D. So it will depend on the values of E and D. Okay, so if you remember we have derived a condition for nth order principal maxima. The condition for nth order principal maxima is given by if you remember we have calculated it to be as E plus D sin theta is equal to n lambda. So this is our equation 1. यहाँ पे जो मेरा n है that can take the values from 0 to n. Okay, but the condition for minima, अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो हमारी कंडीशन फॉर मिनिमा क्या आई थी,
ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन लैम्डा, लेकिन यहाँ पे एन एक ही हो जाएगा, तो इसलिए हम एक नया टर्म देंगे, एम मान लेंगे. सो राइट डाउन कंडीशन फॉर मिनिमा in case of single slit. In case of single slit is given by E sin theta is equal to plus or minus m lambda. यहाँ पे m जो है मेरा can take the values from 1 to n. Okay, this we have already seen in the derivation. So when ये दोनों condition simultaneously satisfy होंगी तभी मैं कह सकता हूं कि मेरा जो मैक्सिमा है वो मिसिंग होगा. ओके, सो सपोज करो मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, एक इक्वेशन 2 दे गया, तो अब मैं करूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2. वी गेट व्हाट? यू विल गेट e प्लस डी साइन थीटा divided by E sin theta is equal to n lambda by m lambda. Okay, so you can see lambda will get cancelled, sin theta will get cancelled. What you will get? E plus d divided by E is equal to n by m, or you can write n is equal to E plus d by E into m. ठीक है, so this is my condition for missing order maxima. Condition for missing order maxima. ठीक है, सो अगर मैं सपोज करता हूं, एक कंडीशन मान के चलता हूं कि E इज इक्वल टू डी है सपोज, तो कौन कौन से मेरे मैक्सिमा मिसिंग होंगे? अगर E इक्वल टू डी है तो ये बन जाएगा मेरा 2d बाई डी इंटू एम, तो डी कैंसिल हो गया, तो बन गया मेरा n इक्वल टू 2m. अब जैसा कि हमने पहले देखा कि m कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 एक्सेट्रा ले सकता है. तो अगर m मेरा 1 2 3 है तो कौन कौन से मैक्सिमा मिस हो जाएंगे? सेकेंड मैक्सिमा, then 2 into 2 4, fourth maxima, then 2 into 3 sixth maxima. ये सारे जो maxima है that will be missing from the diffraction pattern. Similarly अगर ये twice हुआ, if E is equal to 2d हुआ, तो क्या होगा? we will get n is equal to 3d by d into m. So if m इक्वल टू 1 2 3, तो कौन कौन सी मेरी मैक्सिमा मिस हो जाएंगी? 3 6 थर्ड मैक्सिमा, सिक्स्थ मैक्सिमा एंड 9th मैक्सिमा. सो दीज विल बी मिसिंग. सो दिस इज द लेक्चर अबाउट द मिसिंग मैक्सिमाज इन द डायफ्रैक्शन पैटर्न. थैंक यू वेरी मच.